Everybody, this is from atoms and molecules वाले chapter के बाद में जो chapter number 4. This is the structure of atom we are discussing. So E by M ये जो हम लोगों ने कल discuss किया था. We had discussed this thing and some of the questions were there. What is E? What is E by M? So this is the charge. Oh, nothing will happen. Don't worry. Already बहुत गिरता है. So everybody, this is E by M. So E is for charge, है ना? E is for charge. E by M is charge by mass ratio. So E is charge for electron और E is charge for proton. Basically ये जो charge दिया 1.60 into 10 to the minus 19 coulomb, ये आया है. कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो आज नहीं आया है. But still, this came from Mulliken's oil drop experiment. जो last time I have told you कि Mulliken's ने oil drop experiment किया था. किसके लिए किया था? What was the purpose? To find out the mass of electron. वो Mulliken ने जो experiment किया था, oil drop experiment, वो किया था for finding the mass of electron. Electron find out हो गया था, proton find out हो गया. उसके बाद में Mulliken ने एक oil drop experiment किया था. This experiment was basically उन्होंने चार्ज ऑयल को, मतलब ऑयल को प्लेट पर गिराया एंड देन फ्रॉम उस प्लेट से दैट ऑयल वाज ड्रॉप बाय ड्रॉप वो चार्ज हो रहा था. एक्सरे से चार्ज हुआ एंड देन इट वाज जितना स्पीड में वो ड्रॉप हो रहा था, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड, उस अकॉर्डिंग उन्होंने उसका चार्ज रखा था 1.60. उन्होंने फाइंड आउट किया कि 1 के इक्वल है. बेसिकली हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, फिर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं? This we write what I have given you in the table. 3 subatomic particles का जो टेबल आप लोगों ने बनाया था. In that table, the symbol for electron was E 1 by 0. 0 is the mass because we take electron's mass as a 0 because it is negligible. The weight or the mass of electron is 0. But the charge is this 1.60 into 10 to the minus 19. But it is in minus. Okay, so the charge on electron is minus, negative charge. ठीक है, the charge on electron is negative charge. और जब उन लोगों ने they have find out the charge, so that was 1.60 into 10 to the minus 19 coulomb. तो around 1 U के अराउंड था ये चार्ज जो था, वो 1 के अराउंड जो उन्होंने चार्ज दिया था, that was near to 1. So this is the charge, E is charge, and that is not 4 point something जो आप कल बता रहे थे. So the charge is 1.60. Okay, and around so the whole number will take as 1. So minus 1 is the charge on electron and plus 1 is the charge on proton. So as for proton we write 1 by 1. Okay, so proton के लिए हम जो सिंबल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? P 1 by 1 है ना. आप लोगों ने लिखा हुआ है आपके जो टेबल बनाया है उसमें, तो P 1 by 1 का मतलब क्या है? This is for mass. Okay, this is for mass and this is for number. अब हम बोल रहे हैं, but still this is the charge. वो प्रोटॉन शो क्या करता है? चार्ज शो करता है कि उसके ऊपर 1 प्लस का चार्ज है. The proton is showing that it is having plus 1 charge. In the same case, ये प्रोटॉन के लिए है ना. जब प्रोटॉन का मास फाइंड आउट किया गया और इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट किया गया, किसके बाद में? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है, तो मुलिकन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने फाइंड आउट किया कि भैया ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन और दिस इज द प्रोटॉन. अब इसका मास क्या होगा? अब फाइंड आउट तो कर लिया, एक चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं. जे थॉमसन हैड फाइंड आउट दैट, एंड गोल्डस्टीन ने ये फाइंड आउट किया था कि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज. अब what is the mass of that electron and proton? So they had done Mulliken had done an oil drop experiment, and from that oil drop experiment, these things charge by mass ratio came. Okay, so charge by mass ratio came, and for you just have to remember this thing, not this one. This concept is just to give you an overview that what is going on. So this is not for you. This is for you. It is important to know the mass of electron in your class. In 9th class, it is just to remind you that electron have a mass and that is 9.1 into 10 to the power minus 31 and 1.67 into 10 to the power minus 27 is the mass of proton. So for you, just remember this thing. Okay, not this. In 11th, this will be helpful for you. And the Mulliken's oil drop experiment will come in 11th. मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया आपको. The questions I will take in last. Okay, so write the questions and we'll take those questions in the last in the class. So MMHG एक चीज था MMHG है ना. So MMHG I have dropped in on group also. So that is the basic unit for pressure है ना. जैसे एक पास्कल यूनिट भी होता है
पास्कल इज ऑल्सो प्रेशर यूनिट है ना, प्रेशर के लिए यूनिट एक पास्कल भी है, एक mmHg इज ऑल्सो बेसिक यूनिट फॉर प्रेशर, एंड ऑल्सो टॉर इज ऑल्सो यूनिट फॉर प्रेशर। अब उसका जो कन्वर्जन है कि 1 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, सो 1 atm कितने mmHg के इक्वल होता है, वैसे 780 mmHg के इक्वल होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जब आप 11th में आओगे सब है, ये एडवांस चीजें हैं आप लोगों के लेवल के लिए, तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। पर ये कहां से आया, यू शुड नो कि भाई मास कहां से आ गया इलेक्ट्रॉन का, तो दैट वी शुड नो ना। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया चार्ज बाय मास रेशियो, दिस E by m was given by J.J. Thomson and this E was given by Mulliken's oil drop experiment, और उसमें उन्होंने ऑयल ड्रॉप को चार्ज किया था, एंड जिस इंटेंसिटी या जिस मैग्नीट्यूड से वो ऑयल गिर रहा था, है ना, जिस मैग्नीट्यूड से, क्योंकि उस ऑयल को भी चार्ज कर लिया था उन्होंने उस ऑयल की ड्रॉप पर, जैसे वो गिर रही थी उस पर उन्होंने चार्ज पुट ऑन किया, मतलब एक्सरेज डाली, एंड देन उसके बाद में वो जो ऑयल था वो सेपरेट आउट, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो सेपरेट हो गया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, और ऑलरेडी E by m was given by Thomson, तो इसको डिवाइड करके फाइंड आउट द मास, ठीक है। इन द सेम वे प्रोटॉन के लिए भी फाइंड आउट किया, तो जैसे उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव अलग हुआ, उस न्यूक्लियस में से, उस ऑयल ड्रॉप के न्यूक्लियस में से, मतलब एटम में से, उस ऑयल ड्रॉप के एटम में से क्या सेपरेट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वी आर टेलिंग दैट पॉजिटिव इज प्रोटॉन एंड नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अलग हुए, सेपरेट आउट हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मास फाइंड आउट किया, एंड दे गॉट द मास, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ओनली फॉर नाउ, बट हाउ इट केम वी शुड नो, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग यस्टरडे, हम लोगों आपके जो क्वेश्चंस थे उसके बाद में। नाउ वी विल मूव टू थॉमसन और रदरफोर्ड के जो मॉडल्स के एक्सेप्शंस, मतलब जो कमियां थी उनकी, है ना, जो ड्रॉबैक्स जो थे थॉमसन और रदरफोर्ड के। तो थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था, एनीबॉडी, आपको थॉमसन का मॉडल है पता, यू आर अवेयर अबाउट थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने एटम को कैसा बताया था, एटम एज एन इलेक्ट्रॉन पुडिंग जैसा। ही टोल्ड दैट एटम इज होल सोल न्यूट्रल एंड इट्स लाइक पुडिंग और लाइक वाटरमेलन। इलेक्ट्रॉन्स वो स्टेबल है, so वो स्टेबल नहीं थे। okay, so what is the drawback, what is the drawback of Thomson's model? There is a line given in your book, page number 47. Sir, he also take an example of watermelon, in which the red color area is in positive charge and the seeds of the watermelon is electron, which is Negative charge. So watermelon experiment, you can say pudding experiment. Pudding, also he has taken an example of pudding. So there is a line you can write down. It is the exception or the drawback of Thomson's model is, write down everybody, the results of scattering experiment. Everybody, Thomson's model, question number 2 in your exercise. What is the drawback of Thomson's model? Thomson का जो pudding model था, everybody on the track? Everybody getting my point? Yes. You too? Okay, so exercise, the main exercise in your book, exercise का जो second question है, that question I am telling you, we are writing that question, so you can write down. Everything clear from this thing? This side? Girls, है ना, ये मास कैसे आया, है ना, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, एंड दिस इज द मास फॉर प्रोटॉन। तो ये मास कैसे निकाला हमने, चार्ज बाय मास रेशियो से निकाला, है ना, Maria and everybody others girls, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, I feel that it's having a question mark on your face. Everything is clear? Yes, sir. I'm asking to girls, everything clear? Sir, यहाँ You can go out of the class. मुझे, I don't need a word from you now. Yes. So now we will write the drawbacks of Thomson's model. So what was the drawback? The drawback is the result of scattering experiment. जो रदरफोर्ड ने जो scattering experiment किया था, रदरफोर्ड का जो scattering experiment था, है ना, we have seen Rutherford's experiment.
उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सरेज ड्रॉप की थी। तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको डिफाइन या उसको जजमेंट नहीं दे पा रहा था थॉमसन का मॉडल। अगर थॉमसन ये बोलते हैं कि पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर बोलते हैं कि कोई एटम जो है, पर्टिकुलरली एक एटम जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। तो अगर ये सही है तो रदरफोर्ड का मॉडल सही नहीं है, पर रदरफोर्ड के फाइंडिंग्स सही थे। सो दिस was the exception, or this was the drawback of Thomson's model, that the model was not able to explain the scattering model of Rutherford. So इतना ही है, just one line, that it could not drawback लिखवा रहे हो? yes, this is the drawback of Thomson's model. Okay, so it could not explain the result of scattering experiment carried out by Rutherford. So Rutherford experiment, what the scattering experiment tells us, that the atom is whole solely empty, and the positive charge is inside, means on the center. That he had said that it is a nucleus basically. So nucleus and intranuclear space के बारे में Rutherford ने बताया था in his experiment. So this is the drawback of Thomson's model. You can mention, this is the question number 2. Question number 1, already we have done the 3 subatomic particles, differences, their charge, their mass. रदरफोर्ड के मॉडल जो वो अल्फा पार्टिकल पर वो इलेक्ट्रॉन से नहीं वो Electron positive negative, they will attract towards the electron. They are different charges. So we know that charges, different charges attracts and the same charges repel. So if the Thomson's model was true, so all the charges should repel, because the according to Thomson the whole sphere of an atom, ये एक एटम की बात करें तो completely whole जो एटम है, पूरा एटम का जो स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है थॉमसन के अकॉर्डिंग, बट दैट वाज नॉट ट्रू। एटम में इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन से जाके मिल जाएंगे तो एटम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो दैट इज द थिंग ना, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, that he was not able to explain the position of electron, where these electrons are. So we'll come to that also. This is the drawback of Thomson's model. Now we'll come to drawback of Rutherford. Rutherford model, we know that he had bombarded gold on gold foil, the X-rays, है ना, X-rays उन्होंने bombard किया था, and on X-rays basically they were positive charge, है ना, तो X-rays positive charge थे, तो what he found out that उन्होंने देखा कि सेंटर में कहीं पॉजिटिव चार्ज है, हैवी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण व्हाट इज हैपनिंग, डिफ्लेक्शन हो रहा है दिस एक्स रेज का, ये एक्स रेज है, सॉरी अल्फा रेज है, तो ये अल्फा रेज का डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से इट आर चेंजिंग द एंगल अराउंड 90 टू अबाउट 90, मतलब सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हुआ, उन्होंने देखा कि जैसे ही कुछ रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई और 12,000 पार्टिकल्स में से जस्ट सम सिंगल पार्टिकल्स आर मूविंग बैक। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उनकी फाइंडिंग्स थी कि उन्होंने देखा कि एक किसी भी एटम के पर्टिकुलर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस होती है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने कहा एक न्यूक्लियस है एटम के स्ट्रक्चर में, सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास क्या है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब वो बोल रहे हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ठीक है, व्हाट रदरफोर्ड इज सॉरी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो बोल रहे हैं दैट न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है
वो सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, तो क्या होगा किसी दिन ये जो उसका पाथ है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप बोल सकते हैं कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है तो एक्सेलरेशन करती है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन जब कर रही है तो वो एनर्जी लूज करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एनर्जी लूज करेगा तो फाइनली ये होगा कि उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो स्पेस है जहां पर वो सर्कल में घूम रहा है, इट विल कम, द एनर्जी विल ड्रॉप बैक टू जीरो, और एक दिन ऐसा आएगा इट विल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस और जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल था उसने उन्होंने ये तो सही कहा, हिज फाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस वाज ट्रू कि न्यूक्लियस है सेंटर में, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उनका जो फाइंडिंग था, दो फाइंडिंग्स थी, उन्होंने कहा था न्यूक्लियस इज देयर इन द सेंटर, वो पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और सेकंड थिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस के बारे में उन्होंने बात किया था। बट ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, उन्होंने पर्टिकुलर व्हाट इज द पोजीशन और ये एक्सेलरेशन का क्या है ना, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो इट विल कम टू न्यूक्लियस एंड इट विल डिस्ट्रॉय, द एटम विल डिस्ट्रॉय। सो व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन then comes Bohr model. So write the drawback of Rutherford first. Yes, everybody. It could not explain, everybody, the drawback of Rutherford model or the scattering model, you can say. The drawback of Rutherford model or the drawback of scattering model, it could not explain, write the drawback, everybody. It could not explain the stability of atom. It could not explain the stability of atom. सर तो एटम तो स्टेबल रहता ही नहीं है, तो फिर Atom stable रहता है. अच्छा एटम Yes, it could not explain. It could not explain the stability of atom. Full stop. Whenever a charged particle, whenever a charged particle like electron, whenever a charged particle like electron is revolving around a central force, is revolving around a central force like that of nucleus, a central force around a central force like that of nucleus. Central force, what is the central force? The nucleus. As per Rutherford, the nucleus is in center of the structure of atom and the electron is revolving around the nucleus. So two discoveries Rutherford experiment had given. One is nucleus and second is intranuclear space. So nucleus, he told that nucleus is positive charge and in the, that positive charge is proton in the nucleus. That time neutron was not discovered. So proton only, they assume that there is only proton. Because they are taking example of hydrogen. They have taken an example of hydrogen. Hydrogen is the lightest gas. So that time they just compare कि भैया electron ही है, sorry proton ही nucleus में. Because hydrogen में क्या होता है? एक proton होता है in the nucleus. Hydrogen के nucleus को अगर आप observe करेंगे तो hydrogen के nucleus में क्या होता है? Single एक proton ही होता है. ठीक है? So that because of that thing they are assuming कि भैया किसी भी nucleus में there is only proton. Okay? चलिए आगे लिखिए. Where were we? Nucleus. Comma, it loses energy continuously in the form of radiation. After nucleus, it loses energy in the form of radiations. Full stop. It loses energy in the form of radiations. And ultimately
and ultimately electron should fall into the nucleus, and ultimately electron should fall into the nucleus. So ultimately what will happen, the electron will come in the nucleus and the atom will destroy. Okay, so atom destroy हो जाएगा, तो atom अगर stable ही नहीं है तो फिर क्या होगा? So then Bohr came. Neil Bohr was the scientist who came after this experiment. Means after the discovery of nucleus, after the discovery of electron, proton, Neil Bohr came, and yesterday there was a question that हम लोगों का जो ये मॉडल्स थे वो कैसे स्टार्ट हुआ? 1904 थॉमसन हैड गिवन द मॉडल 1904 में, ठीक है. 1911 911 रदरफोर्ड का मॉडल आया था, एंड नील बोहर हैड गिवन द मॉडल इन द ईयर 1913. नील बोहर ने जो मॉडल दिया था, है ना, वो था 1913 में. ओके, सो नील बोहर हैड गिवन द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू नील बोहर. What was the main thing of Neil Bohr model? That electrons revolve only in certain fixed orbit. Yes. Electron revolve only in certain fixed orbit around the nucleus without losing energy. मतलब जिस orbit में electron, so what is the sense? This orbit में electron revolve कर रहा है, the energy of that orbit is fixed, and the energy of electron is also fixed. सर तो रिवॉल्व करो तो एनर्जी तो यूज होगी सर. But the energy is fixed, na? The electron consisting that amount of energy, only that will be in that orbit. Okay, so it will not lose energy because they are in balanced manner. Okay, so in that case they will not lose energy because they have the energy is fixed. Energy ना तो decrease हो रही है ना increase हो रही है. Increase और decrease कब होगी? जिस इस टाइम पे जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर, है ना. नील बोहर ने क्या कहा? दैट दे हैव अ फिक्स ऑर्बिट. इसको शेल भी नाम दिया था, है ना. फिक्स ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं. तो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. उसका फिक्स एनर्जी है, उस फिक्स ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है. अब ये जो फिक्स ऑर्बिट है इसका पर्टिकुलर एनर्जी है, इसके पर्टिकुलर द नील बोहर हैड गिवन द नेम्स आल्सो फॉर KLMN, और उसके बाद में भी शेल्स आगे इफ इन केस है तो पढ़ सकते हैं. एक सेकंड. Yes, so electron revolving only in certain fixed orbit around the nucleus without losing energy. So this is the nucleus. Okay, this is according to Bohr. Okay, so this are the names of the orbits जहां पर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू नील बोहर. जब बेसिकली हमारे पास जो 18 एलिमेंट्स हैं, आप लोगों के पास एक टेबल है इन दिस चैप्टर एंड यू हैव 18 एलिमेंट्स, नेम ऑफ 18 एलिमेंट्स. वो सीरीज अकॉर्डिंग ही है जहां पर उनका पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. तो अकॉर्डिंग 18 एलिमेंट्स जो हैं उनकी फाइंडिंग्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पोजीशन क्या है, किस शेल में है, दैट वाज गिवन बाय दिस मॉडल. बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग दैट वी कैन एक्सप्लेन. Okay, around up to 18 we can say. So Bohr ने क्या कहा? What Bohr said that the electrons are revolving in a fixed orbit, और उस ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है. एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अभी तक क्या हुआ था? Up till now there was no orbit, there was no certain position of electron. जस्ट हम अज्यूम कर रहे थे. थॉमसन ने तो ये अज्यूम किया कि पॉजिटिव स्क्वायर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं लगा होगा. उसके बाद आया रदरफोर्ड ने प्रॉपर बताया कि पॉजिटिव स्क्वायर इज नॉट देयर, अ न्यूक्लियस इज देयर. And that nucleus contains a positive charge, that is proton. Okay. After that, Rutherford, Neil Bohr came and he said that yes, there is nucleus in the center, but the electrons are revolving round the nucleus in a certain orbit, in a fixed orbit, and that fixed orbit has a certain energy. Okay. So the energy pattern is like this: E1, then E2, E3. E4 and so on, जितने भी ऑर्बिट्स होंगे. तो एनर्जी ऑफ E1 इज द लोवेस्ट एनर्जी. उसके बाद E2, E3 एंड E4,
ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिट, उसके सर्टेन ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो दैट स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। जब कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन के एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो वन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस के शेल में। तो इन दिस के शेल वो घूम रहा है, ठीक है। अब जब तक वो इसी ऑर्बिट में है, टिल उसके लाइफ में जब तक वो इसी ऑर्बिट में है, दैट स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे, क्योंकि वो सर्टेन ऑर्बिट में ही घूम रहा है। जैसे ही हम उसको एनर्जी देंगे, जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कहीं से एनर्जी हम उसको देंगे ताकि हम कोई कंपाउंड बना सकें, ठीक है, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो किसी और ऑर्बिट में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन तो इट मूव्स अप, एनर्जी रिलीज करता है तो इट मूव्स डाउन बैक टू दी ऑर्बिट जहां से वो आया था। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इट moves from ground state class, it moves from ground state towards the upper orbits में वो जाता है। अब जब वो लूज करता है एनर्जी तो वापस से वो ग्राउंड स्टेट में या उसके ऑर्बिट में, पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट का वो था उसमें आ जाता है, ठीक है। इन 11th you will study that this orbit also contains subshells, मतलब एक ऑर्बिट की भी ऑर्बिट्स होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, KLMN ही है। There are many things, lot things you have to study in chemistry. एंड देयर आर मैनी फाइंडिंग्स उसके बाद भी हुआ। सो नील बहर ने ये चीज बताई थी दैट देयर इज अ न्यूक्लियस, यस, बट देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स आल्सो, ओके, एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दोज ऑर्बिट्स ही हैड डिफाइंड। सो द न्यूक्लियस एंड देन द शेल्स, KLMN, was given by Neil Bohr. So the Rutherford had explained, yes, nucleus and the intranuclear space, but also where is the electron was defined by Neil Bohr. Okay, so we'll write something about Neil Bohr. So what was the model of Neil Bohr? What he says, the main point is the electrons revolve, drop a heading Neil Bohr's model and just write a line, the electrons revolve, Neil Bohr, write a heading Neil Bohr's model, and you just have to write a line, single line. You just have to write a single line, that is the electrons revolve only in only in certain fixed orbit. The electrons revolve only in certain fixed orbits around the nucleus. The electrons revolve only in certain fixed orbit around the nucleus without losing energy in the form of radiation. Without losing energy in the form of radiation. The electrons revolve only in certain orbits around the nucleus without losing energy around the nucleus without losing energy in the form of radiation. तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लूज किए बिना इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उस फिक्स्ड ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी हमने जैसे देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड ऑर्बिट में है और वो उसी ऑर्बिट में है तो दैट स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो वो रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी को लिबरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में वो रेडिएशन को लिबरेट नहीं कर रहा है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि एनर्जी के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को कैसे लिबरेट करते हैं। तो मैंने लोहा गर्म किया है ना, हमने हीट किया लोहे को, तो लोहा कैसा हो जाता है, रेड हॉट, लाल कलर का हो जाता है। या कोई और क्रिस्टल ले लिया तो किसी सर्टेन और कलर का हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वो एक्साइट हुआ और वो वापस वो कहां गया, एक्साइटेड स्टेट में, तो उसने रेडिएशन इमिट की, मतलब वो कलर इमिट किया। तो हम किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं हम क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी एंड दे मूव टुवर्ड्स द एक्साइटेड स्टेट, और वो किसी कलर को इमिट कर रहे हैं जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी मेटल को, नॉन मेटल को, जैसे देयर इज एन एक्सपेरिमेंट या देयर इज एन प्रैक्टिकल इन 10th क्लास
फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं, FeSO4 क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो वो कलर चेंज करता है, टर्न्स टू रेड, वो ग्रीनिश था, टर्न्स टू रेड. ओके, सो दैट इज द थिंग. आयरन सल्फेट है FeSO4. तो फेरस सल्फेट, फेरस इज द नेम ऑफ आयरन. फेरिक फेरस, तो फेरस हो जाएगा फेरस सल्फेट. ओके, सो FeSO4 को जब आप हीट देते हो किसी भी चीज को, इन योर जनरल, आप जब घर पे भी कोई चीज को गर्म करते हो तो उसका कलर चेंज करती है. क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो रेडिएट करते हैं उस एनर्जी को जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं. ठीक, सो ये कुछ और चीज होगी, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, दैट एंड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट एंड व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट. यू शुड नो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट एंड व्हाट इज ग्राउंड स्टेट. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है तो दैट इज ग्राउंड स्टेट, एंड अगर उसको एनर्जी दिया एंड वेंट टू अप तो दैट इज एक्साइटेड स्टेट. चलिए, विल मूव टू सम क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन टाइम. Yes, yes. Ask what question you have. Electrons. सर दोनों कोलाइड नहीं. जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए. बेसिकली देखो, एवरी इलेक्ट्रॉन इज इन पर्टिकुलर ऑर्बिट. तो जब वो वहां पर है, इन केस मैंने ग्राउंड स्टेट, जैसे हम अगर बोले न्यूक्लियस के पास में तो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा एनर्जी है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज है. और इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बाउंडेड है, तो इस इलेक्ट्रॉन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे. अगर उसके और शेल्स हैं और उसमें और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाओगे. तो पहले तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, है ना, एंड उसने एनर्जी रिलीज किया. अगर आप फिर भी हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, यू आर हीटिंग समथिंग, तो इट विल रीच टू द बेस लेवल ऑल्सो. तो दैट इन दैट केस, है ना, तो वो उस अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में है, और उस शेल्स के बाद में वो सब शेल्स में भी है, अकॉर्डिंग टू 11 केमिस्ट्री. ठीक है, सो क्वेश्चन टाइम देख लेते. तो यहाँ पर नील बोहर की जो फाइंडिंग्स थी, पहली फाइंडिंग नील बोहर ने क्या कही थी, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको हम शेल बोलते हैं. तो नील बोहर ने फर्स्ट टाइम नील बोहर had given the position, or नील बोहर had given the place where you can find the electron, that is shell. जहां पर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो शेल या ऑर्बिट, वी कैन कॉल इट एट शेल और ऑर्बिट, दैट वाज गिवन बाय नील बोहर. एंड सेकंड थिंग वाज, while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy. तो डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब वो घूम रहे हैं तो एनर्जी लिबरेट नहीं कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय नील बोहर एंड उनके जो दोस्त थे, है ना. द नेम वाज, साइंटिस्ट का नेम था बोहर एंड ब्यूरे. द बोहर एंड ब्यूरे ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज 2n square. This formula was given by Neil Bohr and Buren. That we will come on that also. So right now we'll move to question time, and then distribution is the other part, and that is also biggest part, because you have to explain 18 जो एलिमेंट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना. 18 एलिमेंट्स है आपके पीरियोडिक टेबल में, फिलहाल you have 18 elements in your book. So those 18 elements, how these electrons are divided into certain shells, K, L, M, N. So that is because of 2n square. 2 into n square. What is n? n is the number of shell. जैसे अगर फर्स्ट शेल है, मतलब k की मैं बात करूं, तो that is 1 का स्क्वायर, that will be 1. What is the square of 1? 1. Okay, so 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 into 2, 2. So 2 electrons will go in k shell. और उस अकॉर्डिंग अदर, जैसे सेकंड है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2, 8. देन उसके बाद वाला तो यू कैन फाइंड आउट, है ना. सो फिर विल मूव फर्दर. सो नाउ द क्वेश्चन टाइम फर्स्ट. So what is the question time? Question number first. On the basis of Thomson's model on an atom, explain how the atom is neutral as a whole. Question number 1. What is the mass of proton? 1.67 × 10⁻⁻27. It's near to 1.
1 U. You can say that mass of proton is 1 U simply, or you can say mass of proton is 1 AMU, atomic mass unit. We define the mass in first in atomic mass unit, then it comes to unified mass. Okay, so that's the second. Everybody. Question number 3, you have to do. Question number 4. I have not told you to stand up from your place.